हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल कोड विद अस। सो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज बहुत बेसिक लैंग्वेज है। कोई भी कोडिंग प्रोग्रामिंग करने के लिए हम लोग बेसिक से ही स्टार्ट करते हैं। सो बेसिक हमारा सी है, तो आज हम लोग सी से ही स्टार्ट करेंगे। सो एट फर्स्ट, व्हाट इज प्रोग्राम? द टास्क ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ डाटा इज accomplished by executing a sequence of precise instruction called a program. Okay, what is C language? C language is a general purpose procedural computer programming language originally developed by Dennis Ritchie at Bell's Lab in the 1970s. It's known for the efficiency, flexibility, and close to hardware functionality, making it widely used for system application software, embedded systems, and low-level programming. Okay, you are understanding by showing this what is C languages. Okay, so what are the special characters we are going to use in C languages? These all are their name. Every special character has their specific name. Okay, like in arithmetic operators, this is addition, subtraction, multiplication, division, or modulo. Let me zoom it out. This is logical relation. This is equal to, this is equal to, this is not equal to. Okay, this is less than, greater than, less than, equal to, greater than, equal to. Logical operators, logical and, this is logical and. Okay, logical or, logical not, NOT. Assignment operators equal to this. Okay, plus equal to, addition assignment, we call them subtraction assignment. Okay, multiplication assignment, division assignment, modulo assignment. Okay, bitwise operators, this is bitwise and. Okay, this is bitwise or. Okay, and this is bitwise XOR. Okay, this is bitwise not, NOT, and this is left shift, and this is right shift. This is right shift. This is our right shift. Increment decrement operator, we call plus plus, we call increment. Minus minus, we call decrement. Okay, conditional operator, question mark, we call ternary operator. Member selection operator, dot. Pointer, what is pointer? We call asterisk. Okay, asterisk or asterisk. Address of operator, ampersand. This is actually n, but we call it the ampersand. Okay, comma operator, normally comma. Okay. Size of operator. Size of operator is size of first bracket. Okay, there are just few examples, and there are more special character and operators in C language used for various purposes. Actually, we need up to this. We need up to only this. After that, if we need another, we can talk later. Okay, so here we have to learn about what are the fundamental functions for output and input. There are two fundamental functions. One is printf and scanf. What is the use of printf? Why we are using printf in the program? This function is used to print formatted output to standard output, usually the console. It takes a format string as its first argument, which may contain format specifics such as module D, module F, module S, etc., representing the data types of the substitute arguments. For example, if you are taking any integer number equal to 10. Okay, so what is the work of printf? It will print what we are going to print. It will print in the output. Okay, just normal. If we are going to print the value of num is module D, comma num. So it will print the value of num is 10. Here the value we have written num is 10. Let me zoom it. Here the value is written num equal to 10. It means num means number equal to 10. So it will print the value of number is 10. Okay. Same. We are going to discuss about scanf. This is the function used to read formatted input from the standard input. Usually the keyboard. It takes a format string similar to printf, but instead of placeholders for output, it contains placeholders for input data types. It then stores the input values into the specified variables. For example, what is the example? If we are taking any integer number and we are printing that number, enter a number. So it will scan the number. Okay, it will check the address of their number. This is the work of scan. Okay, and for note that for scanf, the memory address, this operator is used to provide the address of the variable where the input value should be stored. Okay, just normal.
मैं हिंदी में समझा देता हूँ स्कैन एफ का काम क्या होता है। ओके, प्रिंट एफ का मैंने प्रिंट एफ का बता रहा हूँ। प्रिंट एफ में देखो क्या होता है, प्रिंट एफ में नॉर्मली जस्ट होता है कि जब हम लोग ने कोई नंबर को इंटीजर को यहाँ पे पुट कर दिया, मतलब हमने यहाँ लिख दिया नंबर इक्वल टू 10। सो प्रिंट का काम क्या है, प्रिंट का काम यह है कि इफ हम लोग प्रिंट करेंगे द वैल्यू ऑफ नंबर इज, जब हम लोग ने एम्परसाइन डी दिया इट मीन्स वो प्रिंट करेगा नंबर का वैल्यू, यहाँ पे कॉमा देके हम लोग ने NUM इट मीन्स इसका, तो वो लोग नंबर का वैल्यू प्रिंट करेंगे। ठीक है, नंबर का वैल्यू क्या है 10, तो आउटपुट क्या होगा, इफ यू आर गिव, हम लोग जब ये इनपुट दे रहे हैं द प्रिंट द वैल्यू ऑफ नम इज मॉड्यूल डी कॉमा नंबर, तो वो आउटपुट में हो जाएगा द वैल्यू ऑफ नंबर इज 10। ओके, तो स्कैन एफ क्या करता है, स्कैन एफ क्या करता है, जो एड्रेस है, ठीक है, जो हम लोग प्रिंट एफ में जो एड्रेस दिए हैं, प्रिंट एफ में हम लोग जो लिख रहे हैं उसका एड्रेस वो ढूंढता है। ठीक है, एड्रेस ढूंढ के उसको इनपुट में स्टोर करता है, उसके बाद वो आउटपुट उसको देता है। ठीक है, ओके, सो इतना तक ही करते हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग कुछ कोड्स करते हैं तब ज़्यादा समझ। सो हमारा पहला एग्जाम्पल है, हम लोग करेंगे पहला क्वेश्चन, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट गुड मॉर्निंग। हम लोग इनपुट में कुछ ऐसा क्या प्रोग्राम कोड करेंगे कि वो आउटपुट आएगा गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो हम लोग देव सी ओपन कर लेते हैं। अभी तो हम लोग ये बेसिक है, तो हम लोग अभी देव सी में ही सारा प्रोग्रामिंग करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग को इंक्लूड लेना होगा, इंक्लूड, ये कंपलसरी है, इंक्लूड, इंक्लूड stdio.h, हम लोग को ये एक वेरिएबल ये लेना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग को एक इंटीजर मेन डिक्लेयर करना होगा। ठीक, इंटीजर मेन डिक्लेयर करने के बाद एक सेकंड ब्रैकेट। ओके, सेकंड ब्रैकेट में हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट करना है गुड मॉर्निंग, तो प्रिंट एफ, प्रिंट एफ, प्रिंट एफ, प्रिंट क्या करना है, गुड मॉर्निंग, बस सिंपल, गुड मॉर्निंग। ओके, गुड मॉर्निंग, बस उसके बाद हम लोग यहाँ पे रिटर्न 0 लिख देंगे, रिटर्न 0 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखो, ये हाँ यहाँ पे हम लोग कंपाइल करेंगे, कंपाइल, कंपाइल करना दिखा देता हूँ मैं, जूम करता हूँ। यहाँ पे देखो ये वाला ऑप्शन है ना, ये कंपाइल होता है, यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे और कंपाइल करेंगे, इसको कंपाइल करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। सो यहाँ पे हम लोग चूज कर लेंगे सी सोर्स फाइल, और यहाँ पे हम लोग कुछ भी नाम दे देंगे, जैसे मैंने दे देता हूँ गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओके, गुड मॉर्निंग मैंने प्रिंट किया तो गुड मॉर्निंग दे दी। ठीक है, सो देखो यहाँ पे कंपाइल हो जाएगा, अगर एरर रहेगा, अगर मेरा कोड में एरर होता है तो यहाँ पे रेड हो जाएगा, अगर एरर नहीं रहेगा तो 0 एरर दिखाएगा। ओके, और उसके बाद अगर हम लोग को रन करना है तो सेम उसके बगल में देखो यहाँ पे F10 से भी हम लोग रन कर सकते हैं। हम लोग इसको क्लिक करेंगे और प्रोग्राम को रन करेंगे, देखो प्रोग्राम रन होगा, गुड मॉर्निंग, सी दिस, गुड मॉर्निंग। ओके, ठीक है, सो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। सो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है इनपुट 2 नंबर्स एंड फाइंड द सम ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, इनपुट 2 नंबर्स हम लोग को लेने बोला, तो इनपुट 2 नंबर्स में देखो, इनपुट 2 नंबर्स में जैसे मैंने एक नंबर लिया, सपोज एक नंबर ए लिया मैंने। ठीक है, ठीक से हो नहीं रहा ड्राइंग, फिर से करता हूँ। सपोज मैंने नंबर एक लिया ए, और 2 नंबर्स बोला, एक और नंबर लिया बी। ओके, सो ए में मैंने मान लो समझो ए में 5 लिया, ए में लिया 5, बी में लिया 10, यहाँ मैंने 2 नंबर्स ले लिया। ठीक है, अब इन दोनों का क्या बोला है, सम करने के लिए, इट मीन्स सम मीन्स प्लस करने बोला, प्लस बोला। सो प्लस करके हम लोग को क्या, ये मेरा आउटपुट में होगा। ओके, ये मेरा आउटपुट है। ठीक है, ये मेरा आउटपुट नहीं, ये सॉरी ये इनपुट है। ठीक है, आउटपुट क्या होगा, आउटपुट ये वाला होगा, आउटपुट ये वाला 5 + 10 देंगे हम लोग, और वो प्लस करेगा क्या, जो आउटपुट आएगा वो प्लस करेगा। बस ये हम लोग इनपुट में उसको डिक्लेयर करेंगे ए और बी देके। ठीक है, और आउटपुट बस ये रहेगा। ओके, सो कोड में देखते हैं हम लोग उसको कैसे करना है, सिंपल है कुछ नहीं। और यहाँ से हम लोग को नेक्स्ट पेज में जाने के लिए Ctrl+N। ओके, सो सेम प्रोसेस है, हम लोग को लिखना है इंक्लूड stdio.h। ओके, इनपुट मेन। ओके, सो यहाँ पे हम लोग को क्या क्या लेना है, इनपुट 2 नंबर्स बोला था, इट मीन्स इनपुट 2 नंबर्स ए कॉमा बी, मैंने 2 नंबर्स ले लिए, मुझे एक और नंबर लगेगा। क्यों लगेगा एक और नंबर, क्योंकि मुझे उसको प्लस करना है, तो प्लस करने के लिए मुझे एक वेरिएबल चाहिए। ठीक है, तो मैंने एक सी ले लिया। ठीक है, ठीक, तो मुझे प्रिंट क्या करना है, प्रिंट
एफ, मेरा आउटपुट क्या आएगा, प्रिंट एफ एंटर 2 numbers. ओके, एंटर 2 numbers, सेमीकोलन। अब इसका एड्रेस को स्कैन कर लेंगे, स्कैन एफ डबल इन्वर्टेड कॉमा मॉड्यूल डी। ओके, फिर कॉमा एम्पर साइन ए और कॉमा एम्पर साइन बी। क्यों एम्पर साइन ए और क्यों एम्पर साइन बी? क्योंकि यहाँ पे ए एम्पर साइन मीन्स ये जो हम लोग 2 नंबर्स देंगे प्रिंट करने के लिए, उसका एड्रेस वो चेक करेगा। एड्रेस कहाँ पे हम लोग यहाँ पे दिए हैं, तो उसका एड्रेस वो चेक करेगा। ठीक है, इसके लिए हम लोग ये देते हैं, ये कॉमा नहीं होगा, यहाँ पे सेमीकोलन होगा। ठीक है, अब हम लोग का काम क्या है, क्या करना क्या है, जैसे सिंपल है। सी जो हम लोग ने वहाँ पे एक इनपुट लिया था, इंटीजर लिया था, सी इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस बी, ए प्लस बी, जस्ट ए प्लस बी। ठीक है, तो प्रिंट क्या होगा, ए प्लस बी अगर करेंगे हम लोग, तो प्रिंट किसको करेगा, वो जो सी है ना, सी में हम लोग क्या कर रहे हैं, ए प्लस बी कर रहे हैं, तो वो प्रिंट करेगा सी को सिर्फ। तो सी टोटल मतलब सी मतलब टोटल वैल्यू मेरा जो प्रिंट होगा। ठीक है, तो प्रिंट एफ सम इक्वल टू हम लोग क्या कर देंगे, सम इक्वल टू मॉड्यूल डी। इट मीन्स मॉड्यूल डी मीन्स वो इसको प्रिंट कर रहा है, प्रिंट करके लिखेगा क्या हो रहा है, इसके लिए हम लोग मॉड्यूल डी देते हैं। ठीक है, यहाँ पे कॉमा, और करना किसको है, लिखना किसको है, इट मीन्स सी वाले को लिखना, तो हम लोग सी को लिखेंगे। ठीक है, और एक रिटर्न 0, ये रिटर्न 0 ये सब लाइब्रेरी फंक्शन है। ठीक है, ये सब कंपलसरी होता है, जैसे स्टूडियो कंपलसरी होता है वैसे ये सब भी कंपलसरी होता है। जैसे स्टूडियो कंपलसरी होता है, इनपुट इंटीजर मेन देना कंपलसरी, वैसे रिटर्न देना कंपलसरी। ठीक है, ये हमारा कोड है। ओके, सो अब इसको रिटर्न 0। ओके, सो हम लोग यहाँ पे हम लोग को दो एड्रेस है ना, ए और बी, तो हम लोग को 2 मॉड्यूल भी लेना होगा। ठीक है, एक मॉड्यूल देने से वो रॉन्ग वैल्यू प्रिंट करेगा। ठीक है, 2 मॉड्यूल दिए हम लोग। ठीक है, अब इसको कंपाइल करेंगे, सो 0 एरर। अब इसको हम लोग रन करेंगे। ठीक है, देखो एंटर 2 नंबर्स, तो मैंने 5 एक दिया और एक 10 दिया, एंटर किया, देखो एंटर किया, देखो सम 15, एंटर 2 नंबर्स 5 10 सम 15। ओके, सो लास्ट एक और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, टेक 2 numbers if sum even, print high else print hello। मतलब सेम है उसके जैसा, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। देखो सिंपल है, कुछ करना ही नहीं है, बहुत सिंपल। ओके, देखो यहाँ पे भी हम लोग को 2 नंबर लेना होगा, इट मीन्स ए लेना होगा, एक बी लेना होगा। ठीक, तो यहाँ पे जैसे मैंने लिया 5 10, सेम 5 10, इसको हम लोग प्लस करते हैं। ठीक, तो प्लस करने पे क्या आएगा, 15। ठीक, तो 15 क्या इवन है, नहीं है, तो क्या होगा, प्रिंट हेलो। इवन मीन्स डिविजिबल बाई 2, इट मीन्स ये जो सी हम लोग वहां पे ले रहे थे ना, सी इक्वल टू क्या हो रहा है मेरा, 15, तो सी इक्वल टू 15, इट मीन्स सी अगर डिवाइड होगा 2 से और 0 हो जाएगा और इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो मेरा क्या प्रिंट हो जाएगा, तो मेरा क्या प्रिंट होगा, हाय। अगर नहीं होता है, अगर सी डिवाइड नहीं होता है, इट मीन देखिए यहाँ वाला केस में नहीं होगा डिवाइड, सी 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, हेलो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, लॉजिक है, बस इसमें लॉजिक लगाना और कुछ नहीं। ठीक है, ओके, सो हम लोग इसको कोड में करते हैं। सेम प्रोसेस, हैशटैग include stdio.h। okay, same integer we have declared main, second bracket। फिर से हम लोग को 2 इनपुट लेना होगा, ए और बी, और एक इनपुट सी। ओके, सो यहाँ पे भी हम लोग को प्रिंट एफ करना होगा, क्या, प्रिंट एफ एंटर 2 numbers। ओके, एंटर 2 numbers, और उनका एड्रेस को स्कैन करना है, स्कैन एफ मॉड्यूल टी। ठीक, और यहाँ पे क्या होगा, सी इक्वल टू ए प्लस बी। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग इसको
यहाँ तक तो वो सम कर दिया। सम करने के बाद हम लोग को देखना है कि डिविजिबल बाई 2 है या नहीं है, इट मीन्स इवन है या नहीं। ठीक, तो if c divide by 2 equal 0 देन क्या होगा, देन वो प्रिंट करेगा printf हाय, अदरवाइज मीन्स एल्स क्या करेगा वो प्रिंट हेलो। ओके, here we are missing the f, same return 0. Okay, so there is no error in code. So let's check the first code. Here we are declaring input a, b, c, print, oh, let's see it, spelling mistake, printf, enter two numbers, scanf, c equal to a plus b if c2 is 0. Okay, all are good. Now compile it again because there was some mistake. So enter two numbers, again I am giving 5, 10. Hello. Okay, here is this giving hello. देखो यहाँ पे टू नंबर्स 5 और 10 ऐड होगा तो 15 होगा। 15 ऑड नंबर है, इवन नहीं है, 2 से डिविजिबल नहीं है, तो क्या होगा प्रिंट हेलो प्रिंट हुआ। ओके, एक और हम लोग कर लेते हैं, और एक और करते हैं हम लोग टू नंबर 10 देखो 10 और 10 हाई हुआ वो क्योंकि 20 इज ए इवन नंबर। ओके, सो आज के लिए बस यहाँ तक ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम लोग कुछ आगे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, या फिर अगला कुछ सी में ही अगला कुछ सब टॉपिक के पर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना और नोटिफिकेशन ऑन कर देना, जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी।